Hi student, good morning. This is the second video lecture on the matters in our surrounding. In the first video lecture, we have already discussed the introductory part and the evidence of particle in matter, and we have already studied the some experiment which proves that the particle in matters are in motion. And in the second video lecture, we will discuss about the characteristics of particle of matter. And this video is made by the faculty members of Gyan Bharati School, which help you to study in the chemistry. And the other subjects video will be made by the other teachers respectively. So now look at this. Characteristics of particle. There are basically 4 characteristics of particles of matter. First one is, look at this. Particles of matter are very very small. Means कि मेटर के जो पार्टिकल होते हैं वे बहुत छोटे होते हैं. सेकेंड वन इज पार्टिकल ऑफ मेटर हैव स्पेसेस बिटवीन दैम. व्हाट स्पेसेस बिटवीन दैम मीन्स मेटर के जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे के बीच में स्पेस होते हैं. पार्टिकल्स ऑफ मेटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग. मतलब पार्टिकल जो होते हैं वो मेटर में कॉन्स्टेंटली मूविंग करते रहते हैं, वाइब्रेशन में होते हैं या जो भी मोशन में होते हैं. एंड द लास्ट वन इज पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर. मीन्स एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करते हैं. एंड फॉर दिस ऑल दिस 4 characteristics, there are some experiment which you have to do and you have to observe all these characteristics. I have not written all the experiment because I have already said all this thing in the previous video lecture. So I will only revise all these things. Just you guys please hear carefully or listen carefully. Just particle of matter are very very small. Means if you can remember, then remember my first video lecture of the experiment, that is potassium permanganate experiment. We have done the potassium permanganate experiment with what is the color of potassium permanganate permanganate? That is purple in color. So in the previous video lecture we have done this experiment. What we did is we have taken the piece of potassium permanganate. What we did? We have taken a piece of potassium permanganate and we dissolve it in a water. And after some time, after few time, we observe that whole water color get changed. That change into purple color, which is the color of potassium. So also in this experiment we will do the same thing. We will take a piece of potassium permanganate and dissolve it in a water. Now what will happen? Same thing will happen, that the whole color of the water will get changed into the purple color. Now what we have to do is take 100 ml, 10 ml or 90 some water from that beaker in which you have done the in which you are doing the experiment. You are mixing the potassium permanganate and permanganate with the water. So take some amount of water and mix with the pure water. Now what will happen if you see carefully, that this mixture color or this solution color will be slightly lighter than the previous one. Again take the solution from the last prepared one solution, take some solution and add into other beaker which is full of water. Now what will you see? That again this beaker
will have slightly lighter in color than the previous one. So if you do the same for 3, 4, 5 times, you will see that in the last one, the color of the water will be slightly purple, or it will be more lighter than the previous one. Now what this shows? This shows that the particle of potassium permanganate. This shows that the particle of potassium permanganate itself is made up of million of some small particles. So you all are agree कि पोटासियम परमैंगनेट जो है वो खुद ही स्मॉल पार्टिकल से बने हैं. एंड नाउ वी आर spreading it from one beaker to another beaker which is full of water. So we are diluting it, mixing with the water, and the color get lighter and lighter. So this experiment we have already did in our first video lecture, but we didn't have keep on repeating it, that is taking the solution and again mixing into the water. फिर उसमें से थोड़ा सा सॉल्यूशन लेंगे, फिर उसको दूसरे वाटर में मिलाएंगे, फिर उसमें से सॉल्यूशन लेंगे और दूसरे वाटर में मिलाएंगे. वो नहीं किए थे. बाकी हम लोगों ने इसके कलर चेंज और मूविंग पार्टिकल को मूव करने के लिए जो प्रूफ किए थे वो हम लोग पहले में देख चुके थे. तो ये एक्सपेरिमेंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. अब दूसरा है हैविंग स्पेसेस बिटवीन देम, मीन्स पार्टिकल के बीच में जो होते हैं वो मैटर के पार्टिकल के बीच में बहुत सारे स्पेसेस होते हैं. तो उस स्पेसेस को देखने के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी एक एक्सपेरिमेंट किया है. वो कौन सा एक्सपेरिमेंट है अगर आप लोग याद करें, इफ यू गाइस कैन रिमेम्बर, देन दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ सुगर एंड वाटर. In that cases, what happened with the sugar? If you remember, you just mix a glass of water and a spoonful of sugar. Then what will happen? The volume of water will not rise. Then where does sugar go? Sugar will take a place in the what? Spaces between the water particle. I have already discussed it. You please go through your first video lecture. And third one is that particles are constantly moving. That is, we studied the Brownian motion on the name of the scientist Robert Brown. But here we will take one example. That is, when we light the incense stick. What is incense stick? Incense stick means अगरबत्ती. तो क्या होता है कि जब हम लोग अगरबत्ती को जलाते हैं तो क्या होता है, पूरे रूम में उसका स्मेल फैल जाता है. इसका क्या मतलब है कि उससे जो गैसेस पार्टिकल निकल रहे हैं उसके जलने के बाद, दे आर मूविंग, so they are spreading. If they can't move, how the smells are being spreaded? This proves that the particles in the matter are always in the motion. And now the last one is particles of matter attract each other. This is the new for us. We haven't discussed yet. So look here carefully or listen carefully. Just there are some type of force of attraction between the particle of matter which bind them together. इसका मतलब क्या कि हम लोगों जो भी मैटर है उसके अंदर जो भी पार्टिकल है वो किसी टाइप के कोई ऐसा अट्रैक्टिव फोर्स है जो उस सभी पार्टिकल के बीच में अप्लाई हो रहा है, जो एक दूसरे को जोड़े रखने में मदद करता है. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस फोर्स को बोलते हैं कोहेशन. क्या है कोहेशन? Here I have written the definition of cohesion. The force of attraction between the particle of the same substances is known as cohesion. This is also known as interparticle
फोर्स. व्हाट इज मीन बाय इंटर पार्टिकल फोर्स? मतलब एक दूसरे के पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको इंटर पार्टिकल फोर्स भी कहेंगे, और उसका केमिस्ट्री में साइंटिफिक नेम है कोहेसिव फोर्स. कोहेशन क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ द सेम सब्सटेंस इज नोन एज कोहेशन. हमने यहाँ लिखा हुआ है. अब हम लोग पढ़ेंगे रिजिड एंड फ्लूइड. व्हाट इज रिजिड एंड फ्लूइड? हम लोग कहते हैं ना ये रिजिड है. इसका रिजिड का मतलब क्या होता है? इनफ्लेक्सिबल. रिजिड का मतलब क्या होता है? इनफ्लेक्सिबल. और फ्लूइड का मतलब एनी लिक्विड विच हैज ए टेंडेंसी टू फ्लो इजली, और एनी लिक्विड विच कैन फ्लो इजली एंड रिक्वायर्ड अ वेसल टू कीप इट. और जिसको रखने के लिए हम लोग को कोई वेसल की जरूरत पड़ेगी उसको बोलते हैं फ्लूइड. तो क्या रिजिड और फ्लूइड, हम लोग ने बस इसका मीनिंग जाना कि रिजिड क्या होता है, फ्लूइड क्या होता है. अब आप लोग ये बताइए कि सॉलिड क्या है? इज सॉलिड अ रिजिड और अ फ्लूइड? तो सॉलिड इज अ रिजिड. Why solid is a rigid? Because solid substances are inflexible. Inflexible means we can't bend the solid. मतलब हम लोग solid को मोड़ नहीं सकते हैं, उसका शेप जल्दी चेंज नहीं हो सकता है. बट फ्लूइड का क्या है? फ्लूइड इनफ्लेक्सिबल होता है, वो इजिली फ्लो करता है. तो सॉलिड क्या है? सॉलिड इज अ रिजिड. एंड लिक्विड, हियर लुक एट दिस. A liquid is a fluid form of a matter which occupies the lower part of the container in which it is kept. It does not fill the whole container. Means what? कि लिक्विड जो है वो एक फ्लूइड का फॉर्म है. क्या है? क्योंकि फ्लूइड किसको बोलते हैं? जिसका भी फ्लो करने का टेंडेंसी है उसको फ्लूइड बोलते हैं. तो लिक्विड का भी फ्लो करने का टेंडेंसी है, तो लिक्विड इज अ टाइप ऑफ फ्लूइड और ए फॉर्म ऑफ फ्लूइड विच ऑक्युपाइज द लोअर पार्ट. मीन्स व्हाट? कि अगर हम लोग कोई ग्लास में वाटर डाल रहे हैं तो व्हाट विल हैपन? सॉरी, व्हाट वुड हैपन? क्या होगा कि फर्स्ट द लिक्विड और द वाटर विल रिमेन ऑन द और गोज और सिट इनटू द बॉटम लेयर ऑफ द ग्लास. अगेन इफ यू आर continuously pouring water into that, then the surface of water level will be rise. मतलब वो नीचे से ऊपर भरेगा वाटर, ना कि वो नीचे खाली रह के ऊपर भर जाएगा. ऐसा नहीं होगा. ठीक, वही यहाँ लिखा हुआ है कि matter which occupies the lower part of the container in which it is kept. ठीक, आगे गैस. A gas is the fluid form of matter. क्यों गैस भी फ्लूइड है? क्यों है? क्योंकि गैस का भी जो टेंडेंसी है वो फ्लो करने का है. अभी हम लोगों ने वो पढ़ा था ना इंसेंस स्टिक का, कि स्मेल चारों तरफ फैल जाता है. तो इसका भी जिसका फ्लो करने का टेंडेंसी है उसको फ्लूइड बोलेंगे. तो ए गैस इज अ फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर विच फिल्स द होल कंटेनर इन विच इट इज अ केप्ट. मीन्स जो गैस जो होते हैं, आप अगर थोड़ा सा डालिए, ज्यादा डालिए, वो पूरे कंटेनर में फैल जाएगा, वो कहीं भी स्पेस नहीं छोड़ेगा. ठीक, अब है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. मतलब उसको किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया कि ये सब्सटेंस सॉलिड है, ये लिक्विड है एंड ये गैस है. सो लुक एट दिस. Here I have written the properties of solid. Properties means गुण. क्या क्या गुण है सॉलिड के? Properties of liquid. क्या क्या गुण है लिक्विड के? Similarly, I have written the properties of gases. You all of you have to by heart it. Means you have to learn it or you have to remember this, so that if anyone will ask you the properties of solid, liquid and gas, you should reply quickly. So what is the properties of solid?
सॉलिड हैज अ फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, मतलब सॉलिड का जो होता है वो एक निश्चित शेप और वॉल्यूम होता है। कैन नॉट बी कंप्रेस्ड सो मच, मीन्स सॉलिड को हम लोग बहुत ज्यादा दबा नहीं सकते हैं। कैन नॉट बी कंप्रेस्ड सो मच। हैव अ हाई डेंसिटी, डेंसिटी मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय डेंसिटी? मास पर यूनिट वॉल्यूम। जो होते हैं सॉलिड के जो होते हैं वो हाई डेंसिटी होते हैं। डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली, मतलब सॉलिड जो है, सॉलिड जितना अमाउंट आपका रहेगा वो उतना ही स्पेस ऑक्युपाई करेगा, वो पूरा गैस की तरह वो पूरा कंटेनर में नहीं फैलेगा। दे डू नॉट फ्लो मीन्स दे डू नॉट हैव अ टेंडेंसी टू फ्लो, वो फ्लो नहीं करेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, what first one, फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स शेप। लिक्विड का क्या प्रॉपर्टी है कि उसका वॉल्यूम फिक्स रहेगा बट उसका शेप फिक्स नहीं रहेगा। उसका शेप कैसा होगा? आप जिस भी कंटेनर में लिक्विड को डालोगे वो उसका शेप ले लेगा। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर क्लियर अबाउट दिस कि आप लिक्विड को जिस भी कंटेनर में डालोगे दे विल टेक द शेप ऑफ दैट कंटेनर। कांट बी कंप्रेस्ड सो मच, ज्यादा हम लोग उसको भी लिक्विड को भी ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। मॉडरेट टू हाई डेंसिटी मीन्स व्हाट, कि हो किसी लिक्विड का कम डेंसिटी रहता है, किसी का ज्यादा रहता है। अगर आप लोग एग्जाम्पल में देखें तो याद करें कि या अपने घर में भी देख सकते हैं, वाटर का डेंसिटी बहुत कम रहता है। अगर आप लोग हनी का बात करें, हनी का डेंसिटी ज्यादा रहता है ना वाटर के अकॉर्डिंग। तब तो हनी को अगर हम लोग वाटर में एक ड्रॉप भी डालते हैं तो प्योर हनी जो होता है वो नीचे जाके सतह पे, वाटर के सतह पे बैठ जाता है। सो मॉडरेट टू हाई डेंसिटी। डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली मीन्स व्हाट, कंटेनर को कंप्लीटली फिल वो भी नहीं करता है। जितना आपके पास है लिक्विड और जो वेसल है उसी के अकॉर्डिंग आप अगर लिक्विड का अमाउंट बढ़ाते जाइएगा तो वेसल में आपका लिक्विड का अमाउंट बढ़ता जाएगा। फ्लो इजली मीन्स लिक्विड हैज अ टेंडेंसी टू फ्लो इन द लिक्विड, और वी हैव ऑलरेडी studied in the fluid that the liquid is a form of matter which occupies the lower part of the container in which it is kept. It does not fill the whole container. Liquid is a fluid form of matter. So now the last one is the properties of gases. Look at here. That neither a fixed shape nor a fixed volume, मतलब कि गैस का ना तो फिक्स शेप होता है ना कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। आप थोड़े से गैस को एक बड़ा सा सिलेंडर में रख सकते हैं, एक छोटा सा वेसल में रख सकते हैं, मीडियम इतना बड़ा भी रख सकते हैं, इतना बड़ा, मतलब उसका कोई वॉल्यूम होता ही नहीं है। आप कितने भी छोटे और बड़े से बड़े कंटेनर में सेम अमाउंट ऑफ गैस डाल सकते हैं कंप्रेस करके। कैन बी कंप्रेस्ड इजली, मतलब वो कंप्रेस बहुत इजली हो जाता है। वेरी लो डेंसिटी, उसका डेंसिटी बहुत ही कम होता है। फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली, मतलब वो अपने कंटेनर को पूरी अच्छी तरह से फिल कर लेता है। फ्लो इजली, गैस हैज अ टेंडेंसी टू फ्लो। सो दिस इज इनफ फॉर टुडेज. In the next video lecture we will study about the diffusion, and after that there is a question answer. So आप लोगों को क्वेश्चन आंसर बनाने हैं, जो भी डिफ्यूजन बेस्ड होगा आप लोग उसको छोड़ दीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि you have to go through your books. If you are not going to your books, देन आप लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ मैं जो बोल रही हूँ वही आप लोग सुन रहे हैं। अगर मैं 2 लाइन बोल रही हूँ तो वही दो लाइन आप लोग सुन रहे हैं।
लेकिन बुक में तो वो सारे डिटेल से दिए होंगे, इसलिए आप लोग को पूरा बुक्स भी पढ़ना है। और डिफ्यूजन पे क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। सो थैंक यू।